Hello, Assalamu alaikum. During this meeting, I'm going to discuss with you about chapter number 2, which is about the managing individual. It is very important chapter because management is about uh, dealing with the individuals and interacting and communicating with the individuals. So it's important to understand about the individuals, human being. So this chapter is going to deal with individuals at work. We will begin our discussion with the discussion of psychology and the major assumptions of nature versus nurture. Then we are also going to discuss about self-interest versus cooperation. Then we will focus our discussion on the perception and explain how we come to perceive and understand things as well as make error in those understanding through stereotypes, attribution errors, and so on. Another important topic which we are going to cover is personality and different perspective in how our personality forms. And then we emphasize that values are important drivers of behavior. So we discuss values in depth and especially Shalom Schwartz's notion of value priorities. Moreover, in an attempt to correct the somewhat negative perception of psychology as dealing only with sick people, there has been a recent movement emphasizing positive psychology, which has been quite influential on management thinking in recent years. So, given today's uncertain and ambiguous world, we also include a discussion on happiness. And we define happiness as more than just laughter or constant feeling of happiness, and to include serenity, calmness, contentment, and so on. So this is the general outline of this topic, and so let's start a discussion in detail regarding the different objectives of this course. These are the objectives of this chapter. You can look into these objectives of this chapter. Okay. So, in organization today, a one size fits all management approach will not work. Actually, the managers have a different kind of a people in which to which they are going to deal with them, and so there is no longer that they have a same kind of a strategy with everything. There are different kind of a situation, and the people are complex. So managers are acquainted with some of the core ideas that have to originated from psychology and which apply to the management and the organization. So they basically हम साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में कैसे होती है और उसके नतीजे में क्या फील्ड्स हमारे सामने आती हैं और किस तरीके से आप उन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को इंसानों को समझने के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। पहली बात है एक वर्ड साइकोलॉजी की। तो टर्म साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड from the Greek word psyche, meaning one's own thoughts and feeling or their being, and the English suffix ology derived from the Greek logos, meaning reason, which in English is rendered as ology and denoting a field of study. So psychology is the study of our being और मोर सिंपली द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द बिहेवियर। तो बुनियादी तौर पे जो साइकोलॉजी है उसके अंदर दो वर्ड हैं, एक साइकी है, एक ओलॉजी है। साइकी का मतलब है बीइंग और ओलॉजी जो है ग्रीक के अंदर इसका जो मतलब है वो रीज़न है, अंग्रेजी में इसका मतलब जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी है। तो साइकोलॉजी से मुराद ये कि ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि आर बीइंग, जो कि स्टडी ऑफ आर बीइंग, जो हमारे वजूद के हवाले से उस ये स्टडी है। और अगर और सिंपली कहा जाए तो ये हमारे माइंड और बिहेवियर के हवाले से ये फील्ड ऑफ स्टडी। तो साइकोलॉजी का जो बुनियादी मकसद है कि वो इंसान की जहन को समझना और इंसान के उस जहन के साथ जो रवैये हैं और नतीजे हैं उनको समझना, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड जो है इन चीज़ों से के हवाले से वो डील डील करती है। तो अब हम इस हवाले से साइकोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ बातों को हम डिस्कस करेंगे। क्या किस तरीके के साथ साइकोलॉजी के अंदर परसेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वैल्यूज़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है और वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। और आखिर में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को फोकस करती है, जिस तरह पैथोलॉजी, किस तरह एक शख्स जो है नॉर्मल से
बिलो है तो उसको नॉर्मल सतह पे लेकर आया जाए, जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी इस बात को भी डिस्कस करती है कि किस तरीके से एक इंसान जो है अगर नॉर्मल से अबव है उस पे कैसे उसको रखा जाए। इसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। अब जो साइकोलॉजी की जो कि अगर हम देखा जाए जो ज़्यादा, तो आज से 2500 साल पहले भी साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स थे, उन्होंने नेचर ऑफ द सेल्फ के हवाले से, सोल के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से डिस्कशन की थी। और बुनियादी सवाल जो साइकोलॉजी आंसर करती है कि वाई आर द वे वी आर, हम ऐसे क्यों हैं, हमारी जो कि पर्सनैलिटी है उसकी वो ऐसी क्यों है, और इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुई है, ब्रेन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी जो कि काम के हवाले से हुई भी है, वो अप्लाइड इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, और जो कि एक अप्लाइड फील्ड है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के वो कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, और जो ज़्यादा जनरली फील्ड मैनेजमेंट से रेलेवेंट है, जहाँ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी हैव बीन अप्लाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। और organizational behavior involves understanding, researching, and addressing organizational behavior phenomena from a multidisciplinary perspective, primarily including psychology, but also drawing on sociology, anthropology, economics, and political science, to name but a few. तो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्टडी है वो ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, और वो भी एक अप्लाइड डिसिप्लिन है जिसका कंसर्न जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी है, ग्रुप लेवल पे भी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर है। जो प्रोसेस और प्रैक्टिसेस हैं दैट इनहिबिट और इनेबल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो बुनियादी तौर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसके नतीजे के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो इस बात को भी स्टडी करती है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, ग्रुप लेवल के ऊपर भी, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के प्रोसेस को भी डिस्कस करती है। Okay, in almost all fields of psychology, there are two main themes which drive theory and research. The first theme, which basically focuses on the nature versus nurture debate, and it is basically the discussion about that how well you achieve things in specific spheres of the life will depend on your genetic dispositions, your personality, ability to be leader, to be caring or aggressive. The second theme focuses on the idea that we come into this world with a clean slate, that our personality is something that is socially constructed as we learn to manage ourselves and become the kind of a self we want to be. तो अगर आप देखें कि एक तो नेचर और नर्चर के हवाले से बात है कि क्या नेचर इंसान के अंदर तमाम ये सारी पर्सनैलिटी, कॉग्निशन और बिहेवियरल जेनेटिक ये प्री प्रोग्राम्ड है, या इंसान बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है और सब चीज़ें अपनी एनवायरनमेंट के हवाले से सीखता है। और अगर इसे हवाले से देखा जाए एक अपोजिंग व्यू जो नेचर वर्सेस नर्चर फ्रेम्स के हवाले से है, that which we learn in the field of the organization behavior। और इसके हवाले से थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भारत कुछ चीज़ें जो हैं वो जीन्स के अंदर मौजूद होती हैं, और बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान जो है अपनी नेचर और एनवायरनमेंट के हवाले से भी सीखता है। तो आपका ये सवाल कि भाई इस सवाल को बुनियादी जो डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर के हवाले से कि इंसान जो होता है उसकी एक फितरत के अंदर भी बात होती है और कुछ अपने एनवायरनमेंट से भी बात सीखता है, तो मैनेजर के लिए जो उसकी ओरिएंटेशन होगी इस हवाले से कि क्या वो ज़्यादा नेचर का रोल समझता है या फिर वो ज़्यादा नर्चर का रोल समझता है, और इस हवाले से जो भी उसकी अप्रोच होगी लोगों को मैनेज करने के हवाले से उसकी ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर और नर्चर जो होगी उसकी उस अप्रोच को अफेक्ट करेगी और उसके अपने बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगी एट द वर्क प्लेस के हवाले से। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट थीम जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी और रिसर्च के अंदर हमें नज़र आती है, और जो कि जो आइडियाज़ हमें नज़र आते हैं वो चार्ल्स डार्विन के हैं और उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से हैं, जो कि उसने एक बताया था सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ के हवाले से। और जिस तरह कुछ एवोल्यूशनरी आर्गूमेंट ये करते हैं कि सेल्फिश जीन होती है जो कि हमारा एक प्रोग्राम, हम इस तरह ह्यूमंस प्रोग्राम्ड हुए हैं कि वो कंपटीशन करते हैं, एक फंडामेंटल स्ट्रगल उनकी होती है कि वो दूसरी जीन्स को इस हवाले से compete करें, और then they basically have a struggle to get over the other genes as well। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डिपेंड करता है कि इंसान एक लेकिन ये भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर बात है
कि सोशल इंसान एक सोशल एनिमल की तरह सीकिंग एफिलिएशन भी सीख करता है, दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात भी बनाता है। तो ये ज़्यादा कमिटेड कोऑपरेशन के हवाले से रहता है, ताकि उस कंपटीशन के हवाले से, जो कि सर्वाइवल के हवाले से, उससे ज़्यादा उसकी ज़्यादा कमिटमेंट जो होती है कोऑपरेशन की तरफ से होती है। तो ये बहरहाल दोनों ही अपोजिंग व्यूज हैं, कुछ एक कंपटीशन के हवाले से, एक कोऑपरेशन के हवाले से है, जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी के साथ रिलेट करती हैं, और इसके हवाले से भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी, वो भी आपको डिपेंड करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से क्या है। और तो बहरहाल डार्विन का एक जो बुक थी जो उसने पब्लिश की थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ फॉर लाइफ, 1859 के अंदर आई थी। और इसने भी एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है, इसने भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, मैनेजिंग के कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस किया है। जो वर्ड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सुनते हैं, ये इसकी बेसिक जो असम्पशन है, वो ट्रेडिशन है, वो डार्विन की थ्योरी ही से ही सामने आई है। बहरहाल जो लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, और कभी जब उनको अगर किसी वक्त में किसी मेडिकल की कंडीशन फेस करनी पड़ जाए और कोई ऑर्गन चाहिए हो जिसका, जो कि ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो डोनर ही को ढूंढते हैं। तो जो कि अगर आप इस एवोल्यूशनरी थ्योरी के बेसिक प्रेमिसेस के हवाले से देखा जाए, तो वो तो उनके लिए कोई इस थ्योरी के हवाले से तो किसी को डोनेट भी नहीं करना चाहिए अपना ऑर्गन किसी के लिए, क्योंकि इस तरह तो दूसरा पर्सन जो है सर्वाइव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी के अंदर भी कुछ जो है वो ऐसी अजम्पशन हैं जिनके अंदर जो है कुछ वीकनेसेस हैं। फिर एक और जो थ्योरी जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और मैनेज ओके जी, इन जनरल ऑल मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम परसेप्शन बिकॉज वी मैनेज व्हाट वी थिंक वी परसीव टू बी हैपनिंग। तो परसेप्शन जो है वो मैनेजमेंट का एक बुनियादी प्रोसेस आप समझ लें, क्योंकि मैनेजर जो समझते हैं कि जो कि हो रहा है उसी के हवाले से ही वो फिर मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो परसेप्शन के हवाले से अगर डेफिनेशन की जाए, तो परसेप्शन एक इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अटेंडिंग टू, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग स्टिमुलाई टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। The stimuli can be experienced through any and all of the senses such as sight, sound, smell, taste and touch. तो एक बेसिक मॉडल फिगर 2.1 के अंदर दिखाया गया है परसेप्चुअल प्रोसेस के हवाले से, कि हम स्टिमुलाई के साथ कैसे डील करते हैं, अपनी एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करते हैं, और इसके हवाले से कुछ एग्जांपल दी गई हैं। और स्टिमुलस होते हैं, एक एग्जांपल के अंदर स्टिमुलस जो कि आपकी अटेंशन को देखते हैं उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस ए, स्टिमुलस बी। अगर आप कहीं जाते हैं और आप किसी मसलन तकरीब के अंदर जाते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको कोई, आप एक बड़ा अच्छा दोस्त अपना नज़र आ जाता है, तो ये भी एक स्टिमुलस है। फिर आपकी उनके साथ बातचीत शुरू हो जाती है, तो आप इसको उन स्टिमुलस के नतीजे के अंदर, अब स्टिमुलस उसके अंदर आपकी जब बातचीत शुरू हो जाती है, तो आप उस शख्स को जब अटेंशन देते हैं, उसको हम कहते हैं अटेंशन। और उसके बाद इर्द गिर्द म्यूजिक भी बज रहा है, लोग भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। और फिल्टरिंग जो होती है वो इंटेंशनल भी हो सकती है और सबकॉन्शियस भी हो सकती है। लोग फिल्टरिंग जो है वो के प्रोसेस के अंदर इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, कि बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन इंसान अपने जहन को किसी खास इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर लेता है, इसको हम सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। और फिर आप उस बात शख्स की बात सुनते रहते हैं और उसकी बात को समझ रहे होते हैं, अपने दोस्त की बात को, और आपका दोस्त अपनी बातें बता रहा होता है। तो आपके अंदर जो स्कीमाज एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं, वो उसके मुताबिक उन बातों को स्टोर भी करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी, आप उस इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इस मॉडल के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है वो सारी गैदर हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है, और आपके जो अपने सेट ऑफ स्कीमाज हैं उसके मुताबिक उसका एक रिलेशनशिप आप आपस में तमाम इंफॉर्मेशन का बना लेते हैं कि आपस में क्या रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। और लेकिन बहरहाल लोग मुख्तलिफ स्टिमुलाई को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट करते हैं। आप अपने दोस्त के बारे में जो सोच रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, जो वो बातें कर रहा है, उसकी एक इंटरप्रिटेशन आप ही कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी और मायने में बात कर रहा हो और आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, या फिर आपकी और उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है तो आप बेहतर तरीके से
इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है जी। और जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर हो जाती है तो इसको हम रिट्रीव भी करते हैं और री इंटरप्रेट भी करते हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल इस मुलाकात के हवाले से फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, किसी और दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं, तो उस दोस्त से मुलाकात जो होगी आपकी, आपको कुछ बातें शायद उसमें से याद भी रह जाएं और कुछ बातें आप जो है वो भूल जाएं। तो ये परसेप्शन का एक प्रोसेस है जो कि स्टिमुलस से शुरू होता है। सबसे पहले अटेंशन होती है, कहाँ आपने किस स्टिमुलस को अटेंशन देनी है, किस तरह फिल्टर करना है, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह इंटरप्रेट करना है और आखिर में किस तरह उसकी स्टोरेज और रिट्रीवल करते हैं। इस हवाले से स्कीमास जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हवाले से। अच्छा, स्कीमास जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के स्कीमास होते हैं। स्कीमा से बुनियादी मतलब ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन, आपका क्या स्ट्रक्चर है आपके अंदर जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, और अपनी सोशल वर्ल्ड के अंदर जो है वो आप कैसे उस इंफॉर्मेशन के हवाले से उस इंफॉर्मेशन को कैसे जो है वो इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के स्कीमाज हैं, पर्सन स्कीमाज हैं, सेल्फ स्कीमाज हैं, स्क्रिप्ट स्कीमाज हैं, सोशल स्कीमाज हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहली बात पर्सन स्कीमाज के हवाले से। पर्सन स्कीमाज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग दैट अफेक्ट थिंकिंग, प्लानिंग and behavior concerning others. Within person schemas, there are idealized person schemas that serve as a prototype with which we compare all other person. अच्छा, पर्सन स्कीमास में वर्ड है पर्सन का, आपके अंदर एक अपना एक आइडियलाइज्ड पर्सन है और उस पर्सन के मुताबिक आप दूसरे लोगों को एवेल्युएट करते हैं कि वो कैसे हैं। मतलब आप अपने आप को जैसे परसीव करते हैं, ये आपका पर्सन स्कीमास है। और मतलब वो पर्सन जो है, उस पर्सन का जो आपके जहन के अंदर एक आइडियलाइज सेल्फ है, वो एक आपका मौजूद होता है। पर्सन स्कीमा जो होता है उसके ज़रिए से आप और लोगों को भी जज कर लेते हैं और इस हवाले से देखते हैं कि आप दूसरों के मुकाबले में किस तरह के हैं वो, या दूसरा शख्स जो है वो आपके मुकाबले में कैसा है। ये सारी बातें पर्सन स्कीमास के अंदर आती हैं। पर्सन स्कीमास के साथ जो रिलेट एक और टर्म करती है, इसको हम कहते हैं सेल्फ स्कीमा। और सेल्फ स्कीमा से मुराद ये है कि आपकी अपनी सेल्फ कंसेप्शन क्या है अपने बारे में, आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, आप किस तरह अपने आप के हवाले से किस तरह अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें मसलन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप बड़े ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, तो हो सकता है आपके, और इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आपका एम्प्लॉयर भी आपके बारे में यही सोचता हो। और सेल्फ स्कीमा जो होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं पर्सनैलिटी के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर दो किस्म के सेल्फ होते हैं। एक होता है आइडियलाइज सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ, और एक उसको आइडियल टाइप ऑफ द सेल्फ कहा जाता है, और दूसरा आपका एक्चुअल सेल्फ होता है। अगर आइडियल सेल्फ के अंदर और एक्चुअल सेल्फ के अंदर फ़र्क कम हो तो इंसान ज़्यादा अपने आप को, यानी अकॉर्डिंग टू द स्कीमा थ्योरी, को ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता है, और अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो उसकी डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकती है। और अदर काइंड ऑफ स्कीमाज इंक्लूड स्क्रिप्ट स्कीमा, सोशल स्कीमाज एंड द रोल स्कीमा। और हमारे मुख्तलिफ किस्म के स्क्रिप्ट्स होते हैं। स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मतलब एक स्क्रिप्ट है, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बाइक अपनी राइड करते हैं, तो उसके क्या मुख्तलिफ किस्म के स्क्रिप्ट्स हैं। तो हर स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस के वजह ही से आप जाते हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भूख लगी और आपके पैसे हैं कि आप रेस्टोरेंट से खाना खा सकें। और वहाँ कुछ स्टैंडर्ड रोल्स हैं, जो एक्टर वहाँ मौजूद होते हैं। मसलन जो कि कस्टमर है उसका रोल आप प्ले कर रहे हैं, कोई वेट्रेस है, कोई शेफ़ है, कोई अदर कस्टमर है जो कि वहाँ रोल प्ले करते हैं। और उसके नतीजे के अंदर वहाँ एक डिलीवरी होती है, वहाँ एक सर्विस होती है। तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आपके, और ये स्क्रिप्ट्स आते कहाँ से हैं? मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आपका स्क्रिप्ट क्या है कि आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप नॉलेज के लिए आ रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास के अंदर आ रहे हैं तो उसकी नॉलेज हासिल करने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें आपका रोल क्या है, ज़रा टीचर का रोल क्या है। ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं। और ये स्क्रिप्ट्स जो आते हैं ये सोशल स्कीमा से आते हैं। जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है, सोशल स्कीमा नेम सजेस्ट रेफर टू आर सोशल नॉलेज सच एज नॉलेज अबाउट पब्लिक अफेयर्स, लॉज, पॉलिटिक्स, मीडियाज एंड द आर्ट्स एंड एनीथिंग एल्स सोशली इंपॉर्टेंट। जो सोशली इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, वो आपको डिक्टेट करती हैं। डिक्टेट से मुराद है यानी आपको बताती हैं कि क्या आपका रोल इसके अंदर होगा। और रोल यही सोशल स्कीमा जो कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के हवाले से, वो आपके रोल्स को एक्सप्लेन करती हैं कि आपका रोल क्या होगा।
And role schemas refer to schemas about appropriate and inappropriate behavior in specific context. For example, women role as a mother, daughter, professional, wife and friend. कि एक रोल स्कीमा सोसाइटी आपको बता रही है कि जनाब बहैसियत औरत जो है वो आपका क्या रोल है। अब आप उस रोल से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, अगर आपका पर्सन स्कीमा जो है उसके हवाले से डिसएग्रीमेंट करता है तो फिर आप उस स्कीमास के आपस में जो होगा वो एक किस्म की जो होगी वो आपस की भी एक डिबेट हो सकती है। तो बहरहाल ये स्कीमास के हवाले से है कुछ बातें, और ये मैंने आपको बताया सेट ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन दैट ऑर्गेनाइज थॉट्स फीलिंग एंड अटेंशन। हमारी थॉट फीलिंग और अटेंशन को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे स्कीमास, और स्कीमास जो होते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ स्कीमा जो कि मैंने अभी पिछले भी डिस्कस की, जैसे पर्सन स्कीमास हैं, सेल्फ स्कीमास हैं, स्क्रिप्ट स्कीमास हैं, सोशल स्कीमास हैं और रोल स्कीमास हैं, जिसको यहाँ डिस्कस किया गया है। अब अगर आप इस जुमले को पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्कीमास हैं अंग्रेजी ज़बान के हवाले से वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें आप क्या पढ़ सकते हैं इस वर्ड को। अब देखें, ह्यूमन ब्रेन इज सो अमेजिंग एज लॉन्ग एज द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज द सेम, यू विल मेक सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। तो बहरहाल जो सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और स्कीमास को कहते हैं कि उसके अंदर काफ़ी अहमियत है इसको स्कीमास को अंडरस्टैंडिंग करने के हवाले से, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक और एडवांस फॉर्म है जिसको हम कहते हैं स्कीमा थेरेपीज, जो कि ये बताती है कौन से प्रोसेस और स्ट्रक्चर हैं जो लोगों के अंदर मौजूद हैं जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है। तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव स्कीमास को हेल्दी स्कीमा से रिप्लेस कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू स्कीमा थेरेपी जो है लोग अपने बारे में बेहतर फील करेंगे, ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे इस हवाले से। ओके जी, तो ये कुछ बातें थी स्कीमास के हवाले से, और अब मैं बात करूंगा कुछ परसेप्शन के हवाले से और कुछ कॉमन एरर्स के हवाले से जो कि परसेप्शन के अंदर किया जाता है। अब आपको बेसिक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग तो परसेप्शन की भी हो गई, परसेप्चुअल प्रोसेस की भी हो गई, तो अब हम कुछ कॉमन एरर्स को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और क्या इनका रोल होता है और किस तरीके के साथ इनको जो है डील किया जा सकता है। इसमें पहला जो एक कॉमन एरर इन परसेप्शन है इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम डेफिनेशन करेंगे इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंपलिस्टिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन वंस जनरलाइज्ड परसेप्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। तो स्टीरियोटाइपिंग जिस तरह आप देखें कि लोगों के हवाले से कर दिया जाता है, लोगों को किसी ग्रुप के साथ जज किया जाता है। और स्टीरियोटाइपिक प्रॉब्लमेटिक तब होते हैं जब हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम कर रहे हों, जज कर रहे हो इस हवाले से। मसलन अगर हम अपने माशरे के हवाले से देखा जाए तो किसी ज़ात बरादरी के अंदर हम लोगों को जज कर रहे हों, स्टीरियोटाइप कर रहे हों, लैंग्वेज के हवाले से कर रहे हों, कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात कर रहा है, उर्दू ज़ुबान में बात कर रहा है या पंजाबी ज़ुबान में बात कर रहा है, उस हवाले से स्टीरियोटाइप कर रहे होंगे जनाब इस तरह का है, अगर अंग्रेज़ी बोलने वाला है तो वो क्या इंटेलिजेंट होगा, या फिर हम कहें जनाब जिस तरह कहीं मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया जाता है, तमाम मुसलमानों को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म और जेंडर बेस के ऊपर भी स्टीरियोटाइपिंग कर दी जाती है। वुमेन के हवाले से स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, मेल के हवाले से स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। इवन दो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत सारी कुछ जगहों पे स्टडीज़ की जाती हैं तो देखा जाता है, तो समझते हैं कुछ लोग कि जनाब जो कि वुमेन हैं क्योंकि उन्होंने मदर्स बन जाती हैं इसलिए वो लेस टाइम देती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उनकी पे भी कुछ जगह पे लेस होनी चाहिए। और ये एक स्टीरियोटाइपिंग है और इसका जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हालांकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है एज सच, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर आप मेल और फीमेल की देख सकते हैं तनख्वाहों को कंपैरिजन करें तो उनकी तनख्वाहों के अंदर आपको फ़र्क नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टीरियोटाइपिंग से जो है वो हम ये भी एक एरर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, एक किस्म का परसेप्चुअल एरर है जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज का, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज जो हैं वो इस बात को भी हाउ वी परसीव अदर्स एंड हाउ वी एक्ट when we interact with them, but it also affect how we perceive and act ourselves.
Self-fulfilling prophecy was originally conceptualized by the sociologist Robert Merton, and it refers to the process by which a person who holds a belief or expectation, irrespective of its validity, causes it to come true because they behave and act as if it is true. तो इससे मुराद ये कि आप किसी चीज़ के बारे में बिलीव करें कि ये ऐसा ही होगा और वैसा ही हो जाए, क्योंकि आप बिहेव और एक्ट करें, लेकिन आप कहें क्योंकि ये मैं बिलीव करता था इसके बारे से इसलिए ऐसा हो गया। इसके हवाले से लिनोर जैक्सन ने 1992 में एक वर्क किया था, पाइगमेलियन इफेक्ट। और भारत उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने इसके अंदर ये किया जो आजकल तो ये नहीं हो सकेगा, बड़ा मुश्किल हो गया था ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। उसने टीचर को कहा कि जनाब ये कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया मुख्तलिफ सेक्शन से और फिर वापस भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये जो 20% स्टूडेंट हैं ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट हैं। हालांकि कोई इसने इंटेलिजेंस का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया था, बस टीचर्स को बताया, टीचर्स के जहन में भी परसीव हो गया कि बड़े हाईली इंटेलिजेंट है, उन्होंने आगे बिठाया, उनको ज़्यादा तवज्जो दी और उसके नतीजे में उनके मार्क्स भी अच्छे आ गए। तो अब ये एक पाइगमेलियन इफेक्ट था, क्योंकि एक्चुअली जो इंटेलिजेंस थी वो तो मैयर हुई नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका बिलीफ था कि ये हाईली इंटेलिजेंट है, तो इस बिलीफ ने उनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट किया और टीचर के बिहेवियर को भी इफेक्ट किया। दूसरा जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के साथ एक और रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 में डेवलप किया था, उन्होंने ये conceptualized किया था, and he referred to the process by which if we ascribe certain characteristics to a person in one situation based on one trait, we tend to apply those characteristics to that person in other situation and to other traits. मतलब आप किसी एक शख्स को अगर पसंद करते हैं कि उसकी कोई एक ट्रेट है जिसको आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है, तो आप किसी और सिचुएशन में भी उसको समझेंगे कि वो अच्छा है। अगर इंटरव्यू के दौरान कोई अंग्रेजी के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, तो आप कहेंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय भी होगा और इसकी कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत अच्छी है। और आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई सेल्स के अंदर बहुत बड़ा अच्छा है, तो आप समझें कि वो आगे जाके जो है वो मैनेजर भी बहुत अच्छा बनेगा। हालांकि सेलिंग एक अलहदा काम है, मैनेजमेंट एक अलहदा काम है, लेकिन भारत हेलो इफेक्ट इन्हीं बुनियादों के ऊपर हो जाता है कि आप किसी एक ट्रेड को देखते हुए बाकी भी बातें एज्यूम कर लें कि वो भी ट्रेड्स उसके सारे मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर वो मौजूद होंगे। इसको हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। ये भी एक किस्म का परसेप्चुअल एरर है। एक और जो एरर जिसकी बात थोड़ी कम की जाती है, जिसको डेविल इफेक्ट कहा जाता है, और डेविल इफेक्ट रेफर्स टू generally ascribing negative interpretation of people based on one negative trait in one situation। अगर कोई एक सिचुएशन के अंदर कोई नेगेटिव ट्रेट उनके साथ आ गया है, तो आप उनको यही समझें कि वो हर सिचुएशन के अंदर ही नेगेटिव रहेंगे। जिस तरह अगर कोई पर्सन जो है वो अगर जेल सेंटेंस जो है सर्व किया है उसने, और जो कि जेल सेंटेंस सर्व कर कर आ गया है, लेकिन उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए, हालांकि वो सेंटेंस सर्व कर चुका, लोग इसी बात पर जज करें क्योंकि इसने पहले क्राइम किया था, तो ये अब भी क्राइम किया करेगा। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो एक किस्म की डेविल इफेक्ट की है, ये डेविल इफेक्ट की एग्जाम्पल है। ओके जी, अब कुछ फाइनल टू कंसेप्चुअल एरर्स को मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, और वो एट्रीब्यूशन थ्योरी के हवाले से हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की जाए तो ये सिंपली ये बताता है कि लोग कैसे एट्रीब्यूट करते हैं अपने बिहेवियर को और दूसरों के बिहेवियर को, यानी किन बातों की वजह से कहते हैं कि अगला पर्सन ने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, और जो वो खुद करते हैं तो वो कैसे क्या एट्रीब्यूट करते हैं कि हमने ये काम किया तो हमने ये क्यों किया या किस वजह से किया। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी कंसर्न हाउ पीपल एट्रीब्यूट कॉज टू देयर ओन एंड अदर पीपल बिहेवियर। एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर तीन बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनल एट्रीब्यूशंस, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस, और एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी का, कि अगर किसी जगह पे हम देखें कि एक स्टेबल है, यानी एक बिहेवियर, एक पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी के साथ ही काम कर रहा है, तो वो अगर नेक्स्ट टाइम भी वो करने के लिए आएगा तो हम कहेंगे जनाब यही ये काम करेगा। एक पर्सन लेट आ रहा है और वो हर क्लास के अंदर लेट आता है, तो हम कहेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर भी वो लेट हो जाएगा। ओके, और फिर दूसरी ये बात कि अगर हम ये सिचुएशन बिलीव करें कि ये हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कि तो ये सिचुएशन जो होगी, देन वी वुड एज्यूम दैट द नेक्स्ट टाइम वी कुड कंट्रोल द आउटकम। अगर सिचुएशन अगर हम समझते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका आउटकम जो होगा वो भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर सिचुएशन हमारा अनकंट्रोलेबल होगी तो हम उसके अंदर आउटकम को भी एट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। बहरहाल रिसर्च ये शो करती है कि एट्रीब्यूट जो हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन टू पीपल वी डिसएग्री विद
एंड मोर फेवरेबल परसेप्शन टू दोज वी एग्री विद, कि जिन लोगों के साथ हमारा इतफाक हो जाए तो हम ही कहते हैं, उनके लिए हम उनके लिए पॉजिटिवली एट्रीब्यूट करते हैं उनकी बातों को, और जिनसे हमारा इख्तलाफ होता है उनको हम नेगेटिवली एट्रीब्यूट करते हैं उनके कामों को। तो बहरहाल ये कुछ बातें हैं इसके हवाले से। और कुछ फंडामेंटल इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि इंटरनल एट्रीब्यूशन रेफर्स टू attributing the cause of an individual behavior to internal or dispositional factors such as being mean or being generous, कि अगर कोई शख्स जो काम कर रहा है वो उसकी वजूहात उसके अंदर मौजूद हैं तो इंटरनल एट्रीब्यूशन है, और अगर नहीं है वो अगर वो वजूहात बाहर की किसी वजह से हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। कोई शख्स किसी के साथ कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जेनरस है, या फिर ये कहेंगे जी दिखावा कर रहा है, बनावट कर रहा है, तो ये इंटरनल है। और हम कहेंगे नहीं जी इसने कोई से फेवर लेनी है, इस वजह से ये काम कर रहा है, रिटर्न के अंदर कोई काम कर रहा है, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल है। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर जो कि विद इन द एट्रीब्यूशन दो की एरर लोग कर लेते हैं। एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर से मुराद है टू मेक इंटरनल एट्रीब्यूशन व्हेन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अदर, कि हम किसी और का बिहेवियर जब हम बताएं तो हम उसको इंटरनली एट्रीब्यूट कर दें। और इंटरनली एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स लेट आ रहा है तो हम कहेंगे जनाब ये तो लेट आता ही है क्योंकि ये लेजी है, और ये जो है प्रोक्रेस्टिनेट करता है, और ये करना नहीं चाहता काम, तो इस हवाले से एक्सप्लेन कर दें। तो इसको, और अगर असल में ये रीज़न ना हो तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। और दूसरा जो है वो सेल्फ सर्विंग बायस है, ये भी एक एट्रीब्यूशन एरर से रेलिवेंट है। और सेल्फ सर्विंग बायस जब पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेसेस टू इंटरनल कॉजेज एंड देयर फेलियर टू एक्सटर्नल कॉजेज, यानी अगर कोई काम में अगर उनको अच्छा हो जाए तो वो कहेंगे जनाब इसमें तो हम अपनी वजह से हो गए। आप किसी इंटरव्यू में गए और आप सिलेक्ट हो गए तो आप कहेंगे जनाब मैंने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और सारी बातें इस वजह से हुई। और अगर आप ना सिलेक्ट हो तो आप भी कहेंगे जनाब क्योंकि वो बड़े मुश्किल सवालात उन्होंने पूछे थे और वो बड़े बायस थे, उन्होंने तो पहले से कोई सिलेक्शन की हुई थी और इस वजह से मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और अगर ये वजह ना रही हो तो इस ऐसे बायस को हम कहेंगे सेल्फ सर्विंग बायस। अब एक और जो परसेप्चुअल एरर के हवाले से बात की जाती है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस के हवाले से बात की जाती है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो रेफर्स टू द एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट वी एक्सपीरियंस व्हेन वी होल्ड इनकंसिस्टेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग सेट्स ऑफ कॉग्निशन और स्कीमास। मसलन एक पर्सन है और जिसके हवाले से आप कोई चीज़ है आपके, मसलन ऐसे एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि आप कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं और आपको लगता है कि बड़ी अच्छी मैंने खरीद ली, बड़ी ज़बरदस्त खरीद ली, बड़ी अच्छी कीमत में खरीद ली। और जब आप घर खरीद कर लेकर आते हैं, आप बताते हैं तो कीमत, वो कहते हैं ओहो ये तो बड़ी आपने महंगी खरीद ली। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके जहन के अंदर कि आपने जो पहले थॉट थी आपकी वो थी कि बड़ी अच्छी खरीदी, लेकिन अगली अल्टीमेट थॉट जो आई तो फिर वो उसके बाद जो थॉट आई उसमें लगा कि आपने रीडिंग महंगी खरीद कर लेकर आए। तो एक किस्म की एनजाइटी या डिस्कम्फर्ट जो होगा आएगा। अच्छा, लोग इस एनजाइटी या डिस्कम्फर्ट को मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो एड्रेस करते हैं और वो इसके हवाले से सोचते हैं कि जनाब इसको हम कैसे एड्रेस करें। तो कभी रैशनलाइजेशन करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी जो हमने चीज़ खरीदी है उसकी क्वालिटी अच्छी है इस वजह से वो महंगी है, और उसके अंदर ये फीचर्स हैं इस वजह से महंगी है। इस तरीके से वो उस डिसोनेंस को जो है वो एड्रेस कर लेते हैं। तो बहरहाल पीपल जो है मुख्तलिफ किस्म के डिसोनेंस जो हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस अपने वर्क प्लेस के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ जो है उनको कभी कभार इमोशंस के दरमियान भी डिसोनेंस महसूस होती है, कभी कभार उनको कॉग्निशन के दौरान डिसोनेंस महसूस होती है। तो हम ये भी, लेकिन हम ये कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि हमें जो कुछ मालूम है वो हाउ वी केम टू नो, हमें कैसे मालूम हुआ, और जो कुछ हम सोच रहे हैं किसी चीज़ों के बारे से, और वो हम किस किस तरह सोचते हैं, हमारे सोचने का प्रोसेस क्या है। इसके हवाले से जो बुक है, एक डैनियल कैनमैन है, प्रोफेसर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने ये किताब अपने कुछ क्लोज कोलैबोरेटर के साथ मिलकर लिखी है और उस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो ये इस हवाले से वो किताब जो है कुछ बातें करती है हमारे थिंकिंग प्रोसेस के हवाले से, हमारे ब्रेन के सिस्टम, कहते हैं दो ब्रेन सिस्टम है। मतलब ये सारी बातें जो उन्होंने बताई हैं ये बस कहने के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेन वाकई किसी जगह पे दो हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोसेस को कहा है, कुछ प्रोसेसेस हैं ब्रेन के, उन दो प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है। और उन्होंने ये बताया है कि जो कि इस आइडिया को काउंटर किया जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से कि ह्यूमन रैशनल बीइंग है,
और उनके स्टेबल टेस्ट हैं और वो बिहेव इन अ मेनली सेल्फ इंटरेस्टेड वे। तो उन्होंने इस बेसिक चीज़ को क्वेश्चन किया जो इकोनॉमिक का रैशनल मैन है, और उन्होंने इस बात को भी क्वेश्चन किया है कि इमोशन जो हैं वो हमारी जजमेंट के अंदर एरर क्रिएट करते हैं। और उन्होंने यही कैनमैन का बेसिक जो प्रेमिसेस है वो इस बात के ऊपर है कि ना ही लोग जो हैं फुली रैशनल होते हैं और ना ही वो फुली सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो और टेस्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस वाले से टेबल 2.1 जो है आप देख सकते हैं, सिस्टम वन और सिस्टम टू थिंकिंग के हवाले से उन्होंने बताया। और सिस्टम वन जो है उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो इंट्यूटिव सिस्टम है, और इसके हवाले से उन्होंने कहा ये एक ऑटोमेटिक है और आपका लिटिल कंट्रोल है इसके हवाले से। फॉर एग्जांपल रीडिंग दीज वर्ड्स इज ऑटोमेटिक, जिस तरह आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं या फिर मेरी बात को सुन रहे हैं, ये किस्म की ऑटोमेटिक सी बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेलिबरेट अगर सिस्टम है जिसके अंदर आप वो सिस्टम टू होगा, जिसमें आपको कोई जजमेंट अगर करनी है, मतलब अगर आपको इसी चैप्टर को पढ़ना पड़े और समझना पड़े और सारी बातें करनी पड़े तो वहाँ सिस्टम टू जो है वो ऑपरेट हो जाता है। इसी तरह सिस्टम वन जो है फास्ट है, एफर्टलेस है, और सिस्टम वन बड़ी जल्दी से जजमेंट क्रिएट करता है विदाउट मच कॉग्निटिव एफर्ट। और सिस्टम टू जो है वो स्लो है, एफर्टफुल है, और often the conditions under which we make decision rarely allow for time or we cannot put it in an effort। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है सिस्टम टू के लिए उतना टाइम ही नहीं होता जिसके अंदर वो सारे का सारा काम किया जा सके। सिस्टम वन जो है इमोशनल है, सिस्टम टू जो है वो रैशनल है, रैशनल जजमेंट होती हैं उसके अंदर। और ये सिस्टम वन के अंदर गलतियां भी होती हैं, सिस्टम टू थोड़ा लेजी है। और ऑफन सिस्टम वन डोमिनेट्स बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम टू, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिस्टम टू के अंदर कॉग्निटिव एफर्ट करनी पड़ती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे 2+2 तो आप फौरी तौर पे जवाब देते हैं, लेकिन 27 × 13 का जवाब देने के लिए आपको कुछ सोचना पड़े। इसी तरह सिस्टम वन और सिस्टम टू को कहनमैन ने इसके अंदर जो है वो किया है। ओके, तो ये इस हवाले से बात थी परसेप्शंस के हवाले से, परसेप्चुअल एरर के हवाले से। और तो डैनियल कहनमैन का जो वर्क है ये सजेस्ट करता है कि हम ज़्यादातर इरेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं रादर देन रैशनल डिसीजन, और ह्यूमन जो है नॉर्मली शॉर्टकट लेते हैं डिसीजन के हवाले से। और फिर डिसीजन जो होते हैं वो बायस भी होते हैं क्योंकि हम उतनी कभी कभार कॉग्निटिव एफर्ट नहीं करना चाहते जिससे हम पूरी तरीके से तमाम चीज़ों को सोच सकें, और कभी कभार हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता। इसके हवाले से ईगो डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट भी है। ईगो डिप्लीशन मीन दैट व्हेन यू आर डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क और फेस विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, योर कॉग्निटिव रिसोर्सेज आर टैक्स्ड क्वाइट हेवीली, hence there is a greater propensity for cognitive error to occur or for you to give up or to be distracted। तो इस हवाले से ईगो डिप्लीशन का मतलब यही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम टू को यूज़ किया हुआ है, अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो थकन होती है, जहनी थकन की वजह से आप जो हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो बहरहाल एक इंटरेस्टिंग सी प्रेजेंटेशन है सिस्टम वन सिस्टम टू की थिंकिंग के हवाले से। आपकी एक वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के हवाले में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और तो जैसे जैसे लेकिन आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर डिमिनिश करता चला जाएगा, तो हो सकता है आप ज़्यादा रूड और ऑफेंसिव कमेंट्स भी देख सकें और शॉर्टकट लेने की ज़्यादा कोशिश करें। तो बहरहाल अभी तक इसके अंदर प्रोसेस और परसेप्शन के हवाले से बात हुई हुई है और उसके हवाले से बात की है, और ये आपको बताया गया कि हाउ ऑफन वी कैन मेक एरर्स, ऑफन दीज एरर बिकॉज आवर आइडियाज आर बेस्ड ऑन unreflexive beliefs about things, and we make assumptions or inference based on these systems or beliefs rather than being better informed। तो इस वजह से हम कभी कभार ये गलतियां कर रहे होते हैं। अब मैं वैल्यूज़ के हवाले से बात करूंगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और वैल्यूज़ का क्या रोल होता है। वैल्यूज़ एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी कल्चर के हवाले से, लेकिन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड पीपल मैनेजमेंट की कॉन्टेक्स्ट में भी किया जा सकता है कि किस तरीके के साथ लोग जो हैं उनकी अपनी वैल्यूज़ क्या होती हैं और उन वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर वो कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, कैसे लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो वैल्यूज़ आर नॉट ओनली ड्राइव बिहेवियर बट ऑल्सो अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय हाउ वी परसीव एंड मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। और मैनेजमेंट आपको पता है मैनेजिंग पीपल के हवाले से है इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स आर रियलाइज्ड।
तो आपको जब अपनी वैल्यूज़ के हवाले से पता होगा, दूसरे की वैल्यूज़ के हवाले से पता होगा, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब पहला फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर वैल्यूज़। इसमें हम श्वार्ट्ज की डेफिनेशन ही को देखेंगे, और श्वार्ट्ज कहता है कि वैल्यूज एज डिजायरेबल गोल। ठीक है जी। और वैल्यूज को डिजायरेबल गोल वो कहता है कि जो कि आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जो ड्राइव करते हैं, जो कि आपके एक्शन को गाइड करते हैं। और क्योंकि लोग जो हैं सोशल हैं, और इसके अलावा उनकी कुछ अपनी पर्सनल वैल्यूज भी होती हैं, कुछ उनकी सोशल वैल्यूज भी होती हैं। और ये भी है कि पर्सनल सोशल वैल्यूज जो होती हैं, कुछ वैल्यूज उन्होंने माशरे के हवाले से होती हैं, कुछ वैल्यूज उनकी ज़ात के हवाले से होती हैं। और तो कभी कभार ये कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकती हैं, इन वैल्यूज का आपस के अंदर टकराव भी हो सकता है। तो वैल्यूज का एक पर्सनल कंपोनेंट भी है, वैल्यूज का एक सोशल कंपोनेंट भी है। और जिस चीज को हम एज अ इंडिविजुअल वैल्यू कर सकते हैं, करते हैं, कभी कभार वो सोसाइटी हो सकता है उसको वैल्यू उस तरह ना कर रही हो। और ये भी हो सकता है जिसको सोसाइटी वैल्यू कर रही हो उसको हम एज अ इंडिविजुअल ना कर रहे हो, यानी हमारा जो पर्सनल सेल्फ स्कीमा है और जो कि सोशल स्कीमा है, उसके दरमियान भी टेंशन हो सकती है। और अगर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस सूरत में लोग जो है मुख्तलिफ एनजाइटी को भी फील करते हैं, एनजाइटी जो एक्सपीरियंस करते हैं। बहरहाल एज अ रोल ऑफ ए मैनेजर बड़ा अहम काम है आपका कि आप अंडरस्टैंड करें वैल्यूज़ को, वेदर दे आर दोज ऑफ को वर्कर, कस्टमर, सुपीरियर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इज क्रिटिकल इन अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजिंग पीपल। श्वार्ट्ज ने कुछ कहा था, कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रांस सिचुएशनल होती हैं। ठीक है जी। तो ट्रांस सिचुएशनल वैल्यूज को उसने कहा था कि वो कंसिस्टेंट रहती हैं, स्टेबल रहती हैं तमाम सिचुएशन के हवाले से। मसलन अगर आप फ्रीडम को वैल्यू करते हैं, आप ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करते हैं, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी आपके अंदर रहेगी। कहीं कहीं जगह आपकी ये डोरमेंट हो जाएगी, कहीं जगह ये डोमिनेंट हो जाएगी। मतलब ऐसी जगह पे सिचुएशन इस तरह की है जहाँ लोगों ने कोई इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये जंग नहीं होनी चाहिए इंसानों के हवाले से, और आप भी इस बात को, ह्यूमन लाइफ को, फ्रीडम को जो है आपकी वैल्यू बड़ी स्ट्रांग है इस हवाले से, तो आप भी उन लोगों को इस हवाले से सपोर्ट करेंगे। और आप कहीं अगले दिन जाके कोई फुटबॉल क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उस वक्त आपकी वो वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस वक्त वो डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की नहीं कि वहाँ वो वैल्यू जो है वो सामने डोमिनेंट हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज को ट्रांस सिचुएशनल वैल्यूज कहते हैं, जो कि कंसिस्टेंट हैं, स्टेबल हैं अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ ए सिचुएशन। और कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इंसान के ऊपर इस कदर हावी हो जाती हैं कि वो फिर हर सिचुएशन के अंदर उन वैल्यूज से ही डिसीजन कर रहा होता है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि वैल्यूज जो होती हैं आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट मोस्ट आर व्हाट कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। वैल्यूज हैं कॉन्टिन्यूस हैं, मीनिंग दैट दे ओवरलैप, कि इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है। बिकॉज वैल्यूज ओवरलैप पीपल बिहेव और रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सर्टेन थिंग्स इन द लाइफ। और इसके हवाले से आप टेबल 2.2 देख सकते हैं। और इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ हैं, और इन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस जो है लोगों के हवाले से मुख्तलिफ होती है हर एक के लिए। उसके लिए उसकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ की ज़िंदगी के फेजेस में उन वैल्यूज़ की क्या अहमियत है और इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बीइंग अ मैनेजर आपके लिए, यह आपको हेल्प करेगी कि आप उन लोगों के साथ बैठकर काम ले सकें। अभी कुछ डिस्क्रिप्शन है श्वार्ट्ज की वैल्यू टाइप के हवाले से, जिस तरह अचीवमेंट है, बिनोवलेंस है, कंफर्मिटी है, हेरोनिज्म है, पावर है, सिक्योरिटी, सेल्फ डायरेक्शन, स्टिमुलेशन, ट्रेडिशन, यूनिवर्सलिज्म। तो इसको आप अपने जो टेबल 2.2 है उसके अंदर डिटेल में भी देख सकते हैं। तो ये बहरहाल श्वार्ट्ज ने वैल्यूज़ के हवाले से बात की थी, और वैल्यूज़ के अंदर उसने कहा था कि लोग अपनी वैल्यूज़ को कैसे प्रेफरेंस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन उसने बताई हुई हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरीके के साथ की जाती हैं। मतलब अगर आप कोई शख्स जो है बंजी जंपिंग की तरफ जा रहा है और आप उसे कहें कि जनाब ये बंजी जंपिंग तो आपके लिए बड़ी डेंजरस हो जाएगी, आप को चोट ना लग जाएगी, सब कुछ ना हो जाए, और वो कहेगा नहीं जनाब मुझे तो ये करना है और मुझे बड़ा इसमें एंजॉय होता है, करता हूँ, तो उसमें उसकी वैल्यू जो डोमिनेंट होगी उस वक्त स्टिमुलेशन की होगी, जहाँ वो नोवेलिटी और चैलेंज इन लाइफ को जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर से देख सकता है। अब इसके बाद जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरी। और पर्सनैलिटी actually refers to the stable patterns of behavior and internal states of mind that help explain a person behavioral tendencies। और पर्सनैलिटी से बुनियादी, मैं क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजिंग अ पीपल, तो पीपल मशीन तो नंबर की तरह नहीं होते बल्कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज होती हैं। और जब हम लोगों के हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो एक किस्म के स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं
और उनकी इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है जिसके ज़रिए से आप पर्सन की बिहेवियरल टेंडेंसी को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आपके दोस्त हैं, आप दोस्त बैठे हुए हैं, एक शख्स है उसके अंदर बड़ा खामोश सा बैठा हुआ है, एक बड़ा जोकिंग, बड़ा फनी है, बड़े जोक सुना रहा है, और एक है जो कि बड़ा जो है वो बस थोड़ी बहुत ही बातचीत कर रहा है। तो लोगों के हवाले से लोग मुख्तलिफ तरीकों से कह सकते हैं कि जनाब ये जो है थोड़ा सा जो खामोश है वो क्वाइट है, रिजर्व है, जो कि बड़ा जोक सुना रहा है और वो बातें कर रहा है, उसका आप कहेंगे फन है, फन गोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है। इस तरीके के साथ लोग जो हैं लोगों के पर्सनालिटीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वर्क पर्सनालिटी का एक इफेक्ट होता है वर्क के हवाले से भी और क्वालिटी ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से भी, इसलिए पर्सनालिटी की थ्योरीज को समझना आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह लोगों को मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपने हवाले से भी इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तीन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैं पर्सनालिटी के हवाले से, उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। एक है ट्रेड, एक है सोशो कॉग्निटिव, और तीसरा है ह्यूमनिस्ट। अच्छा, पहली ट्रेड अप्रोच है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड अप्रोच को। तो ट्रेड थ्योरी जो है develop from the perspective that personality is something that can be clearly identified, operationalized and measured. ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा पॉपुलर 1930 में हुआ था। ऑलपोर्ट एंड ऑडबर्ट 1936 में उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था टू डिस्क्राइब द पीपल, और 18,000 वर्ड उन्होंने देखे थे डिक्शनरी के अंदर जो कि लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ी फेमस अप्रोच है इसको फैक्टर एनालिसिस करते हैं, उस स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए उन्होंने उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि डोमिनेंटली लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। जो ज़्यादा बेहतरीन थ्योरी, बड़ी अच्छी थ्योरी ट्रेड के हवाले से फैक्टर एनालिसिस के इस्तेमाल के नतीजे में आई है, उसको बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर कहा जाता है। ये मैकेयर और कोस्टा ने 1999 में डेवलप की थी, और दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ट्रेड बेस्ड अप्रोचेस टू द पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तकरीबन तमाम टेक्स्ट बुक के अंदर होता है। इसके 5 बड़े पर्सनैलिटी फैक्टर हैं, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, एग्रीएबलनेस और कॉन्शियसनेस। तो ये 5 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं जिसके नतीजे में लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये किस्म की ट्रेड अप्रोच है ही ट्रेड अप्रोच। आप टेबल 2.3 में इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये यू आर व्हाट यू आर, दैट्स अ ट्रेड अप्रोच that you have been explained by the help of the different kind of characteristics and different kind of the traits. Then you are what we think, इसको हम कहते हैं सोशो कॉग्निटिव अप्रोच। अच्छा, सोशो कॉग्निटिव अप्रोच seeks to explain how learning, social behavior and cognition compose and shape our personality, and its popularity started with the work of Albert Bandura and its concept of reciprocal determinism. अच्छा, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बेंड्रा का कॉन्सेप्ट था, और बेंड्रा मीन दैट आवर पर्सनैलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर बिहेवियर, आवर थॉट्स एंड आवर फीलिंग्स इन इंटरेक्शन विद आवर एनवायरनमेंट। तो वो कहता था कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी थॉट से और हमारी फीलिंग जो उस एनवायरनमेंट में है उसके नतीजे के अंदर हमारा बिहेवियर जो है वो बनता है। मसलन एक शख्स है जो अपने घर के अंदर तो बड़ा अच्छा बोलता है, बातचीत करता है, गपशप करता है, लेकिन बाहर जाके वो थोड़ा रिजर्व हो जाता है, बड़ा क्वाइट हो जाता है किसी इन्वायरमेंट में जाके। तो ये हो सकता है कि उसके अंदर वो सोशेबल, ये बात नहीं कि वो सोशेबल फ्रेंडली ना हो, लेकिन वो हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि जहाँ वो सोशेबल हो रहा हो। और जो एक और थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के हवाले से, उसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। और लोकस ऑफ कंट्रोल से मुराद है, जिस तरह अभी हमने एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कशन की थी, एट्रीब्यूशन एरर के हवाले से डिस्कशन की थी, ये तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो लोकस ऑफ कंट्रोल से इमिनेट हुए हुए हैं। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल से मुराद है कि मसलन आप कहीं जा रहे हो और आप अगर किसी पत्थर से टकरा जाएं और गिर जाएं, तो अब आप कहेंगे ओ हो ये किसने पत्थर रख दिया यहाँ, कौन था ऐसा बेवकूफ़ आदमी जिसने ये पत्थर रख दिया। या फिर आप कहेंगे ओ हो मैंने देखा ही नहीं, देखो मेरी अकल में कहाँ मेरा ध्यान था, तो मैंने देखा ही नहीं पत्थर। एक केस में आपने इंटरलाइज किया कि ये मेरा फॉल्ट था कि मैं इसके ऊपर से गिर गया, मैंने नहीं देखा। दूसरे में आपने दूसरे के ऊपर फॉल्ट कर दिया, एक्सटर्नलाइज कर दिया कि दूसरा इसके बारे से क्या बात करता है। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली ये करता है कि विच रेफर दैट यू कंट्रोल ओवर योर ओन फेट, और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल विच इज द परसेप्शन दैट आउटसाइड फोर्सेज और इवन चांसेस प्री डिटर्मिनली डिटरमिन योर फेट एंड योर फेट इज आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिन लोगों का उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट देखा गया कि वो हाई है, दे आर मच मोर दे आर मोर इंडिपेंडेंट
enjoy better psychological and physical health, and have much better coping strategies. और इंटरनल जो जिनका है वो परफॉर्म बेटर ऑन मोर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और एक्सटर्नल पीपल जो हैं दे कोप बेटर एंड आर हैप्पियर व्हेन दे इवेंचुअली एंटर एज्ड केयर होम, जहाँ लाइफ बड़ी स्ट्रक्चर और कंट्रोल होती है. और ऐसे वो एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट हो. और लोकस ऑफ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस हवाले से है कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं. मैनेजर की क्या ओरिएंटेशन है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है. और जिन लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं उनकी क्या ओरिएंटेशन है, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है. इस हवाले से आपकी बुक में एक दिया हुआ है प्रैक्टिस के हवाले से, वो प्रैक्टिस के हवाले से आप क्वेश्चनर जो है वो फिल आउट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं. और तीसरी जो अप्रोच है पर्सनालिटी थ्योरी के हवाले से, उसको हम कहते हैं यू आर व्हाट यू ग्रो. इसको ह्यूमनिस्ट अप्रोच कहा जाता है. अभी तक जो ट्रेड अप्रोच है वो अप्रोच कर रही थी पर्सनालिटी को कि ह्यूमंस के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, क्रिटिकल हैं, और इसमें जेनेटिकली क्या फैक्टर हैं और आपके एनवायरमेंटल क्या फैक्टर डेवलप किए गए हैं. ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो है वो आपके सेंस ऑफ सेल्फ को सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी समझती है. ह्यूमनिस्ट की जो बुनियादी अप्रोच है कि ह्यूमंस fully realize personal growth and potential in their eternity as a whole being and not just as a bits of genetic material. और उसका बुनियादी जो ह्यूमनिज्म का एक नॉन रिलीजियस एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाए और ये बताया जाए कि ह्यूमन जो है बुनियादी तौर के ऊपर जो एथिकल हैं, सेल्फ फुलफिलिंग हैं और सेल्फ एक्चुलाइजिंग है. और इसकी ज़्यादा ग्रोथ आपको 1960s के अंदर नज़र आती है. और इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट आपको नज़र आते हैं उनमें कार्ल रॉजर हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, एल्बर्ट बेंड्रा हैं. इनको ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है. बहरहाल जो कि मैस्लो और रॉजर के ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करते हैं. और सेल्फ कॉन्सेप्ट से मुराद ये होती है कि हमारे थॉट एंड फीलिंग अबाउट आवर सेल्फ. तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, हु एम आई एंड हु शुड आई बी, इसका एक सवाल, इस सवाल का जवाब जो है इस हवाले से भी दिया जा सकता है कि हम अपने आप को कैसे व्यू करते हैं. अब इसके अंदर दो बातें हैं, एक हमारा एक्चुअल सेल्फ है, एक आइडियलाइज सेल्फ है. तो हम इस एक्चुअल और आइडियलाइज सेल्फ के गैप को कम करने के लिए कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. और जितना ये गैप कम होता चला जाता है उतना हमारा इमेज जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है. जितना हम उस आइडियलाइज सेल्फ के करीब होते चले जाते हैं और हम उतने ज़्यादा एक्चुअलाइज हो जाते हैं, वो सेल्फ के अंदर आ जाते हैं, तो उतने ही ज़्यादा जो है वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा कॉन्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी. और मैस्लो ने इस टर्म को कहा था कि जब लोग अपने आइडियलाइज सेल्फ को अचीव कर लेते हैं, उसने स्ट्रिक्टली जो टर्म यूज की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट यू एक्चुअलाइज योर फुल पोटेंशियल ऑफ व्हाट वी बिलीव यू कुड बी. और अपने आप उस पॉजिटिव सेल्फ को आप अचीव कर लेते हैं. तो बहरहाल जो कि कुछ बुनियादी इसके हवाले से जो कंडीशन है ग्रोथ के हवाले से कि पीपल मस्ट बी जेन्युइन, honest and open but about their own feeling. People must be accepting in that they value themselves and others. Even one's own failing should be seen with a positive regard, or what Roger referred to as an unconditional positive regard. और final important aspect जो रॉजर ने कहा था वो empathy. Empathy concerns how we communicate our feeling to the world and how we in turn and share and reflect to those meaning. और उसने यही कहा था कि अपने पॉजिटिव सेल्फ इमेज तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप इन तीन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस हवाले से पहुंच जाएंगे. और बाकी भी कुछ डिटेल जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर और भी कुछ टेनेंट्स हैं ह्यूमनिज्म के हवाले से जो कि आपकी इसके हवाले से. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी. The psychology is commonly associated with the study of the deviant and the abnormal, but now it's more interested in more positive phenomena as well. और जो कि बुनियादी तौर पर पॉजिटिव साइकोलॉजी जो को एडवोकेट जिन लोगों ने किया उनमें विलियम जेम्स हैं. और दिस कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू मार्टिन ईपी सेलिगमैन और मेहले को भी देखा जाता है. तो बहरहाल इसमें बुनियादी तौर पे पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है एट द सब्जेक्टिव लेवल इज अबाउट valued subjective experience, well-being, contentment, satisfaction in the past, hope and optimism for the future, and flow and happiness in the present. So at the individual level, it is about positive individual traits, the capacity for love and vocation, courage, interpersonal skill, aesthetic, sensibility, perseverance, forgiveness, originality, future mindedness, spirituality, high talent, and wisdom.
and at the group level it is about the civic virtues and the institution that move individual toward better citizenship, responsibility, nurturance, altruism, civility, moderation, tolerance and work ethics. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो अगर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फॉर्म में देखा जाए तो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसको हम पीओबी कहेंगे जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ लिंक करती है। और अगर इसको सादा लफ्जों के अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझा जाए तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, ऐसी रिसर्च है, ऐसी थ्योरी है जो कि साइकोलॉजिकल बेसिस उन साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर रिसर्च करती है जिससे इंसान जो है वो बेहतर और बेस्ट लाइफ पॉसिबल की तरफ मूव कर सके। और बेस्ट लाइफ पॉसिबल के लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग हो, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स हो और उन पॉजिटिव थिंकिंग और फीलिंग के नतीजे में एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करे। और अगर मैनेजमेंट सेंस के अंदर देखा जाए तो पॉजिटिव साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉस्टर सिविक वर्च्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्ट्रुइज्म, टॉलरेंस, हैप्पीनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट की अगर परस्पेक्टिव देखा जाए तो एम्प्लॉयज की पॉजिटिव वेलबींग और उनके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आए उस हवाले से बात करती है ये। तो बहरहाल अगर आप साइकोलॉजी इस पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो नेगेटिविटी को जो है वो नेगेटिव अंदाज में देखती है और नेगेटिव चीज़ों को डिसमिस करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और नेगेटिव जो है वो उन चीज़ों के हवाले से भी देखना चाहिए, तभी हमारा एक रियलिस्टिक एनालिसिस जो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सामने आता है। मतलब अगर कोई डिप्रेस है, कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई अफसरदा है, तो उस हवाले से भी उस नेगेटिविटी को भी डील करने के हवाले से बात करनी चाहिए। और जो जिन चीज़ों को पॉजिटिविटी और जिनके हवाले से पॉजिटिव थिंकिंग और उनके हवाले से बात की जाती है उसके अंदर अनसाइंटिफिक पॉजिटिविटी है और तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। बहरहाल इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन बहरहाल ये बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही है एक फील्ड जो है वो एमिनेट हो रही है, डेवलप हो रही है। और हैप्पीनेस जो ऐसी है उसका पॉजिटिव साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है इसके हवाले से कि हैप्पीनेस जो है वो कैसे फैलाई जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसी हवाले से हम इस फाइनल सेक्शन के अंदर बात कर लेते हैं हैप्पीनेस के हवाले से। लेकिन हैप्पीनेस को समझने से पहले हमें इमोशंस के हवाले से बात करनी पड़ेगी कि इमोशंस क्या हैं, इमोशंस और मूड से हमारी क्या मुराद है। अगर इमोशंस जो हैं उर्दू में इनको जज्बात कहा जाता है, एक ऐसी डेफिनेशन है फीलिंग की इन रिस्पॉन्स टू और एक्सपेक्टेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट। इमोशन इज फॉर समथिंग। अगर इमोशन आप देखा जाए, आप गुस्सा भी एक इमोशन है और एंगर भी एक यानी गुस्सा यानी एंगर ही है, वो भी एक इमोशन है, जॉय भी एक इमोशन है। और दैट इमोशंस आर फॉर समथिंग। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड एट द सेम टाइम बोथ हाईली पर्सनल एंड सोशल। तो अगर इमोशनल को कहा ये भी जाता है कि इमोशंस जो हैं वो किसी के हवाले से होते हैं। मतलब इमोशन जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की एंगर की, फियर की, सैडनेस की। और और इमोशन कुछ लोग इससे भी रिलेट करते हैं कि हमारी इंस्टिंक्ट के साथ रिलेट करते हैं, हमारे सर्वाइवल के साथ रिलेट करते हैं। और इमोशन जो है आपके अंदर एक एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। ई इमोशन यानी मोशन विच क्रिएट्स एनर्जी इन यू, विच क्रिएट्स मोशन ऑन यू। और मसलन अगर एक इमोशन स्माइल का है, मतलब अगर कोई बंदा हंस रहा है तो लेकिन उसकी मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, उसके हंसने की बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। हो सकता है वो कन्फ्यूज स्माइल हो सकता है वो वाकई जनरली खुश हो सकता है वो किसी को स्माइल वैसे ही कर रहा हो। तो अब इस इमोशन के हवाले से भी जो है लोगों के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना, उनके फेशियल लेवल से भी उनकी एक्चुअल वजूहत क्या हैं, क्या वो वाकई खुशी की बुनियाद के ऊपर हंस रहे हैं या इमोशन एक्सप्रेस करें, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जो है ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़रूरी से मुराद है कि यानी कभी डिफ़िकल्ट होता है इंटरप्रेट करना उसका एक्चुअल कॉज को। अच्छा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की जाती है, इमोशंस के हवाले से बात की जाती है। इमोशंस के अंदर मूड जो है उनकी ड्यूरेशन ज़रा लॉन्गर होती है, इमोशन की ड्यूरेशन इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है हाई होती है। इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलराइज डैनियल गोलमैन ने किया था, टू कंसीव ऑफ इट एज द कैपेसिटी टू रिकग्नाइज आवर ओन इमोशन एंड द इमोशंस ऑफ द अदर। अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होना और दूसरों के इमोशन की अंडरस्टैंडिंग होना
और अपने इमोशंस को मैनेज करना और अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा था उन्होंने। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई भी है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डाटा इस तरह का मौजूद नहीं है। इसे क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आपके सारे बहुत सारी चीज़ों को इसके साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ का डाटे की भी ज़रूरत है। ओके जी। हाँ, तो दूसरी अब एक और जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ हैप्पीनेस के हवाले से, कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंसान खुश होते हैं या फिर आप किस वजह से खुश होते हैं, खुशी की बुनियादी वजूहत क्या होती हैं, और फीलिंग गुड या फीलिंग पॉजिटिव भी खुशी है, या खुशी हमें चीज़ों से मिलती है या खुशी हमारे अंदर होती है, सुकून हमारे अंदर होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं जो कि खुशी के हवाले से किए जाते हैं। और खुशी के हवाले से लोग मुख्तलिफ चीज़ों को इसके हवाले से रिलेट करते हैं। एक तो खुशी को वो रिलेट करते हैं पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग के साथ, या ऐसे इंसान जो खुश होता है उसको एक पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग एक्सपीरियंस करता है। फिर उनकी एक रेंज होती है रिलेशन टू जनरल फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट से, कि इंसान जो ज़्यादा खुश होता है वो ज़्यादा पुरसकून होता है, उसके अंदर एक सुकून की कैफियत होती है, वो कंटेंट होता है, सेटिस्फाइड होता है, फुलफिल्ड होता है, इंस्पायर्ड होता है, पॉजिटिव होता है, फ्री होता है। इसके हवाले से एक मॉडल भी डिस्कस किया गया 4 क्वालिटीज ऑफ लाइफ के हवाले से, हैप्पीनेस इन वेन होवन मॉडल। अच्छा, वेन होवन मॉडल ने ये बताया है, उसने एक किस्म की डिस्टिंक्शन क्रिएट की है बिटवीन चांसेस ऑफ गुड लाइफ, लाइफ चांसेस एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ द लाइफ, लाइफ रिजल्ट्स। और सेकंड ही डिस्टिंग्विश बिटवीन एनवायरमेंटल क्वालिटीज एंड इंडिविजुअल इनर क्वालिटीज। तो अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो लाइफ चांसेस और लाइफ रिजल्ट, कि लाइफ ने आपको, जिंदगी ने आपको मौके क्या दिए और जिंदगी के अंदर एक्चुअली जो है वो रिजल्ट क्या है आपके इस हवाले से। तो पहला अगर आप उसका देखेंगे कॉलम कॉलम ए, जिसको टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वेदर दैट एनवायरनमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, लिवेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट ने क्या आपको ग्रोथ के और आपको खुशी के मौके प्रोवाइड किए, ये एक आउटर क्वालिटी की बात है। फिर अगर आप बी देखेंगे, द पर्पस ऑफ लाइफ, और पर्पस ऑफ द लाइफ बॉटम लेफ्ट है, एंड वेदर वी फील वी हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ एंड आर लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज, कि हमने जिंदगी को जो है गुजार रहे हैं, क्या वो अपनी पर्पस, हमारा कोई जिंदगी के अंदर पर्पस है उसके मुताबिक गुजार रहे हैं, और अगर हम उस पर्पस के मुताबिक गुजारें तो हमारी ज़्यादा खुशी होगी। फिर अगर आप देखें कि लाइफ एबिलिटी ऑफ द पर्सन, और लाइफ एबिलिटी ऑफ द पर्सन ये टॉप राइट पे है, विच इंक्लूड्स हेल्थ कैपेबिलिटीज, एडेप्टिव एबिलिटीज, मतलब किस तरह की इंसान की हेल्थ है, किस तरह की उसके अंदर सलाहियतें हैं, किस तरह का उसका ऑप्टिमिज्म लेवल है, रेजिलियंस है, ये सारी लाइफ एबिलिटी ऑफ द पर्सन के अंदर आती हैं। और फिर आखिर में है अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, और अप्रिसिएशन ऑफ द लाइफ भी एक इनर क्वालिटी है लाइफ रिजल्ट के हवाले से, कि जो कि जनरल सेटिस्फेक्शन बताती है लाइफ के हवाले से, उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या रहा। तो हैप्पीनेस जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है, पर्पस और वैल्यूज़ का भी होना ज़रूरी है, आपकी अच्छी हेल्थ और फीलिंग का भी होना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छा फील करते हो अपने बारे में कि आप केपेबल एंड कॉम्पिटेंट हैं, और एज वेल एज अप्रिसिएशन एंड सेटिस्फेक्शन विद लाइफ, कि अपने लाइफ के साथ कितने पुरसकून है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो हैप्पीनेस को जो है वो बताती हैं। तो हैप्पीनेस के अंदर एक आपकी ज़िंदगी, जो एनवायरनमेंट जो आपको मौके प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा फिर आपकी अपनी ज़ात के हवाले से क्या बातें हैं। क्या हैप्पीनेस का प्रोडक्टिविटी के साथ ताल्लुक है, क्या हमें हैप्पी एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हैं? वैसे तो कोई सवालों का जवाब दे तो कहेगा कि नहीं भाई, ये तो ठीक है, जो खुश होंगे वो अच्छा काम भी करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और हॉटली डिबेटेड इसमें रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के हवाले से, और जिसके हवाले से लोग ये बात भी करते हैं कि खुशी का ज़ाहिरी ताल्लुक ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लो को रिलेशन है वेल्थ के साथ। ज़रूरी नहीं कि जो लोग बहुत वेल्दी हों वो बहुत ज़्यादा खुश भी हों, और जो बहुत ज़्यादा खुश हों बहुत ज़्यादा वेल्दी भी हों, इसका आपस में जो रिलेशनशिप है वो इतना कोरिलेशन जो है क्लियर नहीं है। और ये इस पे भी स्टडीज़ की गई हैं हैप्पीनेस और इंक्रीज परफॉर्मेंस के हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से भी कुछ, इट्स क्वाइट ड्यूबियस, इट्स नॉट क्लियर। हम तो वी शुड बी समवॉट स्केप्टिकल अबाउट द हैप्पीनेस वर्क परफॉर्मेंस लिंक। तो वी बिलीव परफॉर्मेंस एंड वर्क शुड नॉट बी द फोकस ऑफ द हैप्पीनेस के। जरूरी नहीं है काम आप जो कर रहे हो आपको खुशी बहुत ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन हो सकता है आपको अच्छे पैसे मिल रहे हो और जिससे आप अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रहे हो, और वो आपका फोकस ऑफ द हैप्पीनेस ना हो काम, बल्कि कुछ और हो,
कुछ और काम आप करते हो जो कि आपको जिससे बड़ी खुशी मिलती हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन हैप्पीनेस जो कि सोशल कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, टिम विल्सन और डैन गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव फोरकास्टिंग का। इफेक्टिव फोरकास्टिंग और कॉग्निटिव एरर दैट अकर इन फोरकास्टिंग इम्पैक्ट बायस एंड फोकलिज्म। अच्छा, समटाइम जो है हम किसी नेगेटिव इवेंट को जो है फ्यूचर में सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इमोशन हमारे प्रेजेंट में क्रिएट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते। बस आप कहेंगे कि जनाब मैं अपना फुल बॉडी का हेल्थ चेकअप नहीं कराता क्योंकि ऐसे हो सकता है कोई ऐसे रिजल्ट आ जाए एग्जामिनेशन के अंदर जिससे मुझे जो है वो नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करूँ, मुझे खौफ महसूस हो या फिर इस तरह के करूँ, तो लोग फिर वो टेस्टिंग ना कराएं। अब ये जो जिस तरह का आप बायस होगा, इस तरह के बायस को हम इम्पैक्ट बायस कहते हैं कि इम्पैक्ट बायस में बी कंसिडर टू बी द ओवर एस्टिमेशन ऑफ द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द फीलिंग्स एक्चुअली एक्सपीरियंस व्हेन वी अचीव दैट फ्यूचर इवेंट और गोल। मतलब आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और आपने कहा कि उस प्रोजेक्ट के बाद तो हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअली जब आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया तो सब टीम इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो घर वापस चले गए। तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट बायस। और ये भी हमारी लोगों की कभी ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं कि जो हम करेंगे वो इस तरह हो जाएगा। अब वो नेगेटिवली भी कर सकते हैं, कभी कभार वो एक्शन ही नहीं लेते कि उनको लगता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा, वो इसलिए भी कर लेते हैं कि वो ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं किसी काम के मुकम्मल होने के बाद ये सब कुछ होगा और जबकि वैसा नहीं होता। एक कॉज जो इम्पैक्ट बायस का है वो है फोकलिज्म। और फोकलिज्म से मुराद है कि हमारी ये टेंडेंसी कि हम फोकस ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस व्हेन वी मेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर, or that result in the focal error because we place too much importance on one aspect of an event in our feeling and perception about the event in the future। कि हमारा जो इम्पैक्ट हम किसी एक बात के ऊपर या एक चीज के ऊपर फोकस कर लें जो फ्यूचर इवेंट के अंदर होना है और उसकी बुनियाद के ऊपर ही काम कर लें, और इसको हम कहते हैं फोकलिज्म। जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि कोई अपना टेस्टिंग नहीं करवा रहा, अपने टेस्ट नहीं करवा रहा इस बात के ऊपर कि नेगेटिव टेस्ट आ जाएंगे तो ये उसको वो नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करने के लिए वो टेस्ट ही ना करवाए। ठीक है। और हो सकता है उसके टेस्ट अगर एक्चुअली उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो टेस्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर तो ये एक एरर हो गया कि वो टेस्ट ना करवाए अगर। और दूसरी ये बात है कि फोकलिज्म जो कि है, और भी बहरहाल कुछ वजूहत होती हैं कि हम लोग जो हैं जिनकी वजह से गलत डिसीजन का शिकार कर लेते हैं, इम्पैक्ट बायस का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभार ये भी देखा है कल्चरली भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट बायसेस जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और इफेक्टिव फोरकास्टिंग नहीं क्रिएट होती। और इफेक्टिव फोरकास्टिंग जो है कभी कभार अभी देखा गया है वेस्टर्नर और ईस्टर्न के हवाले से कि वेस्टर्नर आर मोर लाइकली टू फोकलाइज देन ईस्ट एशियंस। और अगर लेकिन वेस्टर्न्स को डी फोकस किया जाए उस प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन से तो वो भी एशियंस की तरह ज़्यादा मॉडरेट इफेक्टिव फोरकास्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल कौन से फ्यूचर इवेंट जो है वो आपको कितनी हैप्पीनेस, कितना जॉय, कितनी खुशी देंगे, इसके हवाले से कभी कभार जो है लोग हैं ओवर एस्टिमेशन का शिकार हो जाते हैं और कभी कभार वो नेगेटिव इवेंट के हवाले से ओवर एस्टिमेशन का शिकार हो जाते हैं कि जो कि अभी हुए नहीं होते। और ये चीज़ें जो हैं उनकी इमोशनल लाइफ को और उनकी खुशी को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो बहरहाल आप इसके अंदर एक प्रैक्टिस के अंदर हाउ हैप्पी आर यू या आखिर में एक सर्वे भी दिया गया है, उसको भी आप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी आप कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी।